to the team. Welcome to our platform. Yes, of course, I had the great pleasure of joining this platform, and you all know when because I think a lot of you have been following classes with me, whether it's in the morning, Hindu analysis ki baat kar lo, or whether it's in the form of optional. And very soon, as I mentioned, we are also going to introduce classes like social issues and justice. We are going to connect with each other over CSAT, जो कि बस अब starting होने ही वाला है. So everyone here, good evening and welcome to this session. Well, this is a very short webinar actually, and why did we decide to have this webinar in the first place? So this webinar was quite needed because every day in the morning at 9:30, I am meeting my students. As a group, we talk about so many current affairs. हम बात करते हैं कि भाई what's happening around the world, especially if you remember, तो IR के बारे में तो every day we have been having detailed discussions. We have also seen how IR से related topics, especially, just give me a second for the video, especially the ones that are related with your West Asian war that's happening or the Russia-Ukraine war, या फिर अगर हम बात करें इंडिया के साउथ ईस्ट एशिया रिलेशन से. So these are certain things we have been doing persistently every day now for quite some time. ठीक है. और हमें पता है कि करंट अफेयर्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है. एब्सोल्युटली करंट अफेयर्स का क्या कंट्रीब्यूशन होता है यूपीएससी एग्जाम में. मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि करंट अफेयर्स इज द बैकबोन इन यूपीएससी, जिसके थ्रू आप प्रीलियम्स का जीएस पेपर 1 मैनेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप सीसैट के बहुत सारे पैसेजेस को भी कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं. नाउ नॉट मेनी पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड दैट. लोग कहेंगे कि भाई सीसैट इज एन एप्टीट्यूड एग्जाम, दिस इज अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दिस इज अबाउट मैथ्स. तो फिर सीसैट का तो ऐसा क्या ही कंट्रीब्यूशन होगा करंट अफेयर्स में, या करंट अफेयर्स कैसे हेल्प करेंगे सीसैट में हमें. बट दैट्स नॉट ट्रू. एक्चुअली बहुत सारे ऐसे पैसेजेस हैं जो हमें बेटर समझ में आने लगते हैं only if we have a good understanding of current affairs. So current affairs is indeed the backbone of यूपीएससी एग्जाम. प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ऐसे राइटिंग हो, ऑप्शनल हो, और वेदर इट्स इंटरव्यू, आपको करंट अफेयर्स तो चाहिए. ना यूजुअली आई हैव अ वेरी बैड हैबिट, आप इसे गुड या बैड कुछ भी बोल सकते हैं. आई ऑलवेज फर्स्ट लाइक टू टॉक टू माई स्टूडेंट्स एंड हैव अ डिस्कशन विद देम एंड देन कम टू द टॉपिक. लेकिन आज मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी. आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट because one thing is this is a very short webinar. ये बहुत छोटा webinar है. It is only about say 50 minutes to 1 hour, including of course doubt session. Doubt session में तो very important कि I will come to you and solve your doubts. लेकिन I will not be able to address all my dear students individually. ऐसा पहली बार हो रहा है कि मैं नहीं कर रही हूँ. Why? Because timing का crisis है and we have many panelists today, about 180 panelists. ठीक है. अच्छा, is that the case? Okay, all right. Thank you, Shlok. Thank you, Pooja. Okay, now coming back to the agenda, I may not be taking names today, but at the same time, each one of you, all of you, 190 people who are with me right now, lots of love and blessings to you. And each student of mine is precious, more precious than diamond to me. I have hopes in your future. Your future will determine the trajectory of my hopes and my career. So I really, really wish you huge success in life, lot of happiness and good health. इसलिए without taking names, welcome each one of you. अच्छा, अब coming back to the agenda, why do we need this webinar? Because I am talking about a case study in today's webinar. हम सबको पता है करंट अफेयर्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाउ मेनी ऑफ अस एक्चुअली नो कि करंट अफेयर्स पे आंसर्स कैसे लिखे जाएं, हाउ टू राइट आंसर्स बेस्ड ऑन करंट अफेयर, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. लेट्स टेक अ केस स्टडी ऑफ वेस्ट एशिया एंड देन टॉक अबाउट इट. ठीक है. Very good doubt, that is very good question, that is Srushti. I'll keep that in mind and I'll come back to it after the topic is over. Okay, you just want to talk about expressing yourself in English when it comes to answer writing. That's a good question. Chalo, we'll come to that. Before that, एक case study discuss कर लेते हैं. ठीक है. क्या केस स्टडी हमें डिस्कस करनी है? आई केप्ट थिंकिंग कि चलो आई विल टेक अ टॉपिक फ्रॉम हिस्ट्री. आई नो श्लोक विल बी वेरी हैप्पी, हिज फेवरेट इज हिस्ट्री. और आई थॉट चलो लेट मी टेक इंटरनेशनल रिलेशंस. फिर मुझे लगा शक्ति विल बी वेरी हैप्पी, शक्ति का भी तो फेवरेट हिस्ट्री है. बट देन फॉर मी एवरीवन इज इक्वल एंड सेम. तो मुझे पता ही नहीं था विच टॉपिक शुड आई पिक अप फॉर अ जनरल एनालिसिस, बिकॉज हार्ट एंड हार्ट आई एम अ टीचर ऑफ सोशियो करंट अफेयर्स, ऐसे IR. बट बियॉन्ड दैट आई हैव नेवर ट्राइड एक्सपेरिमेंटिंग विद एंशिएंट हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वो मैं नहीं करती हूँ. लेकिन आई रियलाइज कि करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन सबका फेवरेट होना चाहिए. अगर नहीं है तो हमें उसे बना देना चाहिए, बिकॉज सबको पसंद आना चाहिए. दैट्स व्हाट इज इन न्यूज राइट नाउ. तो आई टुक द केस स्टडी ऑफ वेस्ट एशिया. वेस्ट एशिया में अब तक ऑलरेडी आप लोग बहुत स्मार्ट हो, यू नो अ लॉट अबाउट वेस्ट एशिया.
तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यूपीएससी में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं मेंस एग्जाम में, स्पेशली जब बात करंट अफेयर्स की होती है। दैट्स अ वेरी गुड सजेशन कमिंग फ्रॉम प्रियांशु कि क्या हम आईबीसी फॉर्मेट यूज करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। ये एक बहुत स्टैंडर्ड प्रिजम्पशन है कि ऐसे राइटिंग में भी और आंसर राइटिंग में भी वी विल फॉलो आईबीसी फॉर्मेट, जो कि काफी हद तक करेक्ट भी है। बट देन एग्जैक्टली बॉडी में क्या लिखना चाहिए दैट यू कैन कमांड मैक्सिमम मार्क्स, कितना डेटा होना चाहिए, कितना स्टैटिस्टिक्स हमें डालना चाहिए, डू वी हैव टू यूज कोटेशंस और नॉट? अब ये तो क्वेश्चंस हैं विच ऑलवेज ट्रबल स्टूडेंट्स, सबको ये क्वेश्चंस मन में आते ही है, राइट? है ना? तो इसीलिए अब लेट्स टॉक अबाउट न्यूज में इस समय वेस्ट एशिया क्यों है, क्या हो रहा है। एंड इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन यूपीएससी 10 मार्क्स क्वेश्चन, 10 मार्क्स का मतलब क्या होता है? 10 मार्क्स का मतलब 10 मार्क्स का मतलब क्या होता है? 10 मार्क्स का मतलब होता है 150 वर्ड्स आंसर, ठीक है? 150 वर्ड्स आंसर, वेरी गुड। नियर अबाउट 200 भी आप कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये फियर हटाना पड़ेगा कि 150 वर्ड्स का मतलब है आई विल गेट पनिश्ड, आई विल गेट पिनलाइज्ड अगर मेरा आंसर 160 या 170 का है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 150 इज द अपर लिमिट, ब्रॉड अपर लिमिट, अप्रोक्सीमेशन है। आपका आंसर हो सकता है अबाउट 80, 85, 90 वर्ड्स का भी। इट कैन एक्सटेंड ऑल द वे अप टू 170, समटाइम्स 200 ऑल्सो। यूपीएससी क्वालिटी कॉन्शियस एग्जाम होता है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दैट यू गेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने क्या क्वालिटी ऑफर की है। खाली वर्ड ज्यादा लिखने से या लेंथ को बढ़ाने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा होता होगा, मेनी स्टूडेंट्स कम एंड आर्ग्यू विद मी कि मैम तेलंगाना में हमने एग्जाम दिया था या वी अपियर्ड फॉर द स्टेट सर्विसेज इन हरियाणा और वहां वर्ड लिमिट का बहुत रोल होता है। मे बी हो सकता है, हो सकता है। सिंस आई एम नॉट अ प्रोफेशनल कोच फॉर स्टेट सर्विसेज, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। मे बी वहां पे ज्यादा लिखने से ज्यादा मार्क्स मिल जाते हो, कॉलेजेस में मिल जाते हो, बट यूपीएससी में तो ऐसा नहीं होता। इट्स अ वेरी क्वालिटी कॉन्शियस एग्जाम। अच्छा, अब क्वेश्चन अगर हमारे पास एक आता है मेंस एग्जाम, जीएस पेपर 2 में आता है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आता है, या ऐसे का टॉपिक के फॉर्म में आता है कि आप रोज पढ़ते हो वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में, एवरी डे यू रीड अबाउट इट इन द न्यूज, यू सी मैप्स ऑल्सो। आई यूज बाइलिंगुअल, ठीक है? बाइलिंगुअल यूज करते हैं, ओके सुनील, सो दैट एवरीवन इज हैप्पी। ओके, चलिए इस पे भी बात करती हूँ। हाउ मच टाइम डू शुड वी टेक टू राइट ईच क्वेश्चन? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सागर। देयर इज नो एग्जैक्ट टाइम लिमिट बिकॉज हर एक का राइटिंग स्किल और राइटिंग टाइम बहुत अलग अलग होता है, ठीक है? कोई कहता है 5 से 7 मिनट, कोई कहता है क्वालिटी आंसर्स लिखो टेक 8 to 9 मिनट्स। इट डिपेंड्स ऑन योर स्पीड ऑफ राइटिंग ऑल्सो। तो ये बहुत ही रिलेटिव क्वेश्चन है, बट आप कोशिश जरूर कीजिए, यू शुड ट्राई कि पर क्वेश्चन नियर अबाउट 8 से 9 मिनट्स में आप सॉल्व कर सको। वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार लिख रिफ्रेश कर लीजिए। 8 to 9 मिनट्स इज मोर देन इनफ फॉर वन क्वेश्चन, अदरवाइज आप पूरा नहीं कर पाओगे एग्जाम। अच्छा, अब क्वेश्चन मैं आपको देती हूं कि वेस्ट एशिया में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी हमारी क्राइसिस इस समय वेस्ट एशिया में चल रही है, अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आया है कि डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ वेस्ट एशियन क्राइसिस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है? इंडिया स्ट्रेटेजिक, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू जीशान, आई रियली वैल्यू दैट। अच्छा ठीक है, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। Okay. Discuss the impact of West Asia crisis on India's strategic and economic interest. Easy question. Question मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल है? प्रेजेंटेशन मुश्किल है, इसको प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल है। ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ये हो जाती है, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर टेकिंग न्यूज एनालिसिस क्लास, आपको मैप समझ में आता है, तो यू नो हम क्या बात कर रहे हैं, यू कैन रिलेट फर्स्ट विद द मैप की वेस्ट एशिया की बात हो रही है। तो नेचुरली बात हो रही है इस समय ऑन गोइंग इशू की, ईरान वर्सेस यूएस एंड इसराइल के वॉर की। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, रोरिंग लायन एंड ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की बात तो यही हो रही है। हमें यह भी पता है कि बात हो रही है इंडिया के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की, यानी ये क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल है। अगर ये क्वेश्चन खाली स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात करता तो हम सिर्फ इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की बात करते, जहां बहुत सारी चीजें हमने क्लास में अब तक सीखी हैं, ठीक है? नेहरू जी के नॉन अलाइनमेंट से लेके टुडे इन 2026 भारत बिलीव करता है, इंडिया बिलीव करता है इन स्ट्रैटेजिक मल्टी अलाइनमेंट। हम बात इसकी करते हैं ना, अगर ये बात सिर्फ स्ट्रैटेजिक की होती। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक की भी बात है, तो कौन सा है वो स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन को परफेक्ट आंसर कर पाएगा? वो ही कर पाएगा
जिसने पिछले 7 से 8 महीने, और शायद इसीलिए एक कन्वेंशनल विजडम है कि यूपीएससी को अगर एस करना है तो 1 साल, 1 ईयर तक के करंट अफेयर्स का होल्ड आपको बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए, बहुत स्ट्रांगली होना चाहिए। और ये बात अप्रूव हो जाती है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस की हमें उम्मीद भी है। वी आर एक्सपेक्टिंग सच क्वेश्चंस इन दिस एग्जाम। ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सागर। उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा जब आप आईआर पे लिखोगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के क्वेश्चंस लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता बिकॉज यू हैव लर्नड थ्योरीज। लेकिन जब आईआर के प्रश्न आते हैं मेंस में तो बहुत मुश्किल होती है। क्यों? क्योंकि अब यहां नॉलेज तो है लेकिन इसको यूज कैसे करना है हमें समझ में नहीं आ रहा। तो रूल नंबर 1, सबसे पहले शुरुआत कहां से की जाए? सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम को डिफाइन करने से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैन वी स्किप न्यूज़पेपर? देन यू शुड डू न्यूज एनालिसिस। अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है तो न्यूज एनालिसिस फॉलो कीजिए। किसी से भी ले लीजिए जो आपका फेवरेट टीचर हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। टीचर शुड बी एबल टू डू जस्टिस विद व्हाट यू आर स्टडी। अगर न्यूज एनालिसिस का भी टाइम नहीं है तो फिर वीकली मैगजीन फॉलो करो। उसका भी टाइम नहीं है तो मंथली मैगजीन फॉलो करो। लेकिन एक भी मंथ को मिस मत करो। इसलिए मिस मत करो बच्चे बिकॉज जब आप मिस कर देते हो बीच की कुछ न्यूज, आपको कभी भी एक सीरीज ऑफ इवेंट समझ में नहीं आते। आप वेस्ट एशिया क्राइसिस की बात कर लो बच्चा, कर लो वेस्ट एशिया क्राइसिस की बात। जो बच्चे डेली फॉलो करते हैं न्यूज, आज उनकी नॉलेज में और उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, और जो मंथली मैगजीन पढ़ रहा है या जो 6 मंथ्स का कंपाइलेशन पढ़ता है, इंडिया ईयर बुक आती है, बहुत सारी ईयर बुक्स आती हैं, कितनी बोरिंग होती है वो। आप पढ़ पाते हो उसे? मैं तो नहीं पढ़ सकती। आई कांट डू दैट। आज अगर आप मुझे कहो कि मैम आप 7 महीने की न्यूज एक साथ पढ़ लो, आई विल गो मैड। आई कांट डू दैट। मुझे कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं आएगा बिकॉज मैं कैसे रिलेट करूंगी? फिर तो वो हिस्ट्री हो गई ना। अगर आप पुरानी न्यूज पढ़ोगे तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। अगर आपको नई न्यूज पढ़नी है, दैट इज ओनली करंट अफेयर, बहुत ही बोरिंग हो जाता है। आप कैसे रिलेट करोगे बच्चे? इसीलिए जो डेली न्यूज एनालिसिस या न्यूज पेपर फॉलो करते हैं उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपसे फिर बहुत ज्यादा होगी और यूपीएससी आपको वहीं पे कैच करती है। वहीं पे कैच करती है। आपने स्किप कर दिया, एक हफ्ते नहीं पढ़ा न्यूज़पेपर, आपने मिस कर दिया कि भाई अबू मूसा आइलैंड की बात क्यों हुई थी। आपको मिस हो गया, आपसे मिस्टेक हो गई। आपने नहीं ध्यान से पढ़ा कि पर्शियन आइलैंड में कोरल आइलैंड पाए जाते हैं कि नहीं। आपको ये बात मिस हो गई होगी कि हिजबुल्ला का डोमेन कहां पर है, कौन सी रिवर कहां बहती है, कौन सा फ्लड प्लेन कहां है। छूट जाएगा आपसे। और फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? फिर आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। और फिर 6 मंथ्स का आप एक साथ पढ़ोगे तो वो तो वर्क नहीं करेगा। तो आई एम इन ह्यूज फेवर ऑफ न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है तो न्यूज एनालिसिस ले लो भाई। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। ठीक है, ठीक है। अब अगर वो भी नहीं हो रहा है तो फिर वीकली पढ़ो, लेकिन मंथली मैं तो कभी प्रेफर नहीं करूंगी। आई विल नॉट प्रेफर इट इन मंथली। ठीक है, बट रेस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट वर्क्स फॉर यू। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है? कैन यू रिफ्रेश योर लिंक? इज दैट द केस? ऐसा है क्या शक्ति? एक बार रिफ्रेश करिए। वीडियो भी स्टक हो रहा है क्या? न्यूज एनालिसिस का क्या मतलब है? मॉर्निंग न्यूज़पेपर एनालिसिस जो हम करते हैं, मॉर्निंग में करते हैं हम लोग। कोई 9 बजे कर रहा है, कोई 9:30। मैं 9:30 करती हूँ, 9:30 AM करती हूँ आपके साथ। क्यों करती हूँ? बहुत सारे लोगों ने मुझे आके बोला कि एग्जाम सिर पे है, प्रीलिम्स आने वाले हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस पे मैम आप क्यों ध्यान दे रहे हो? यू शुड नॉट टेक द न्यूज क्लास। आप फोकस करो सीसैट में, आप फोकस करो आईआर में, है ना। यू शुड फोकस ऑन योर एरियाज। लेकिन फॉर मी इट मेक्स नो सेंस। जब तक आप न्यूज फॉलो नहीं करेंगे तब तक यूपीएससी के बारे में तो कभी कोई फंडामेंटल समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है ना। तो चलिए आप जब से आ जाइए, जल्दी से आइए टॉपिक पे। टॉपिक पे आइए। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस ऑन इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कैसे इसको सॉल्व किया जाए? लेट अस स्टार्ट बाय डिफाइनिंग द क्राइसिस ऑफ वेस्ट एशिया। कैसे स्टार्ट करेंगे? आप इंट्रोड्यूस करिए सबसे पहले कीवर्ड्स को। टॉपिक में कीवर्ड्स दिख रहे हैं किसी को? कोई कैन यू सी सम कीवर्ड्स हियर इन द टॉपिक? मुझे तो दिख रहे हैं। आई कैन सी सम कीवर्ड्स। I can see some very interesting keywords in this topic. Example, West Asia. Example, strategic. Example, economic. अब बनाते हैं इससे एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन। अगर बात इंट्रोडक्शन की आती है, मैप इज फॉर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। नेचुरली वहां पे हम मैप तो प्रेजेंट कर नहीं सकते, लेकिन आपके माइंड में मैप होना चाहिए जब आप ये आंसर लिखो। इंट्रोड्यूस करिए क्या है वेस्ट एशिया क्राइसिस। क्या है? व्हाट इज वेस्ट एशिया क्राइसिस?
वेस्ट एशिया क्राइसिस एक ऐसी जगह है, वेस्ट एशिया में जो सिचुएशन है वो इतनी वोलेटाइल बनी हुई है, इट्स अ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस। लेकिन ये खाली जियोपॉलिटिकल नहीं है, अब ये जियो इकोनॉमिक क्राइसिस भी बन गई है। और क्यों हो रही है वेस्ट एशियन रीजन में? इसलिए हो रही है क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट में मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी मल्टीपल कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन हु आर द मेन प्लेयर्स, सबसे ज्यादा किसका इन्वॉल्वमेंट है? तो यहां से आप स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टार्ट एंड ठीक है, देन आई विल गेट अ पैरेलल वन इन इंग्लिश फॉर यू। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड बच्चा? सो स्वीट, ओके। अच्छा, वापस आइए टॉपिक पे। वेस्ट एशिया में क्या हो रहा है? वेस्ट एशिया एक ऐसा रीजन है मिडिल ईस्ट का जहां इस समय क्राइसिस है। क्राइसिस बहुत सारे देशों को इन्वॉल्व करके हो रही है, लेकिन मेनली अगर वॉर की बात करें तो ये एक प्रोवोकेशन था। यू कैन राइट अबाउट इट, दिस वॉज अ यूनिलेटरल प्रोवोकेशन। एक और दो कंट्रीज ने मिलके, इजराइल और यूएस ने मिलके सिंगल हैंडेडली अनदर कंट्री को प्रोवोक किया। जरूर लिखना पड़ेगा आपको, और कौन बच्चा लिख सकता है? वही लिख सकता है जो क्लास लेता है रेगुलरली, कि यूएस ने इसको बुलाया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का मतलब यूएस ने कहा आई एम स्ट्राइकिंग ईरान फॉर सेल्फ डिफेंस, लेकिन यहां प्रीएम्प्टिव की बात नहीं हो रही थी, ये गलत क्लेम था। राइट, सो यू कांट से प्रीएम्प्टिव, प्रीएम्प्टिव अलाउड नहीं है यूनाइटेड नेशंस की चार्टर में, पॉलिसी में। तो यूएस ने क्या किया? यूएस ने यूज किया रोरिंग लायन एंड एपिक फ्यूरी ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। दिस इज अ कंप्लीट वायोलेशन, ये एक वायोलेशन है, उल्लंघन है किसका? यूनाइटेड नेशंस चार्टर 2/4 आर्टिकल का। दैट्स इट। अब आपने कर दी क्राइसिस डिफाइन। नेक्स्ट है, अब इस वॉर के डायमेंशंस पर आते हैं। कौन से डायमेंशंस? स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक। ये हमारी बॉडी में आएगा, अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन इंट्रोडक्शन में आपको एक बात और बतानी पड़ेगी इफ यू वांट गुड मार्क्स, कि वॉर जो शुरू हुई थी एज अ बाय पार्टीजन वॉर, दो देशों के ग्रुप्स के बीच में ये जो वॉर थी, स्लोली स्लोली इट बिकेम अ पैन वेस्ट एशिया वॉर। ये पूरी वेस्ट एशिया में स्प्रेड हो गई। क्यों स्प्रेड हो गई? बाय द वे, यहां पे आप बात करेंगे ईरान की स्ट्रैटेजी की। इन शॉर्ट यू हैव टू मेंशन कि ईरान बिलीव्स इन अ स्ट्रैटेजी जिसे कहते हैं, वेरी कुछ लोग जिसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। पहले तो कि ईरान से ये वॉर स्प्रेड होनी शुरू हो गई। अब माइंड में रखिए अपने मैप, बिकॉज मैप तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसा कि वो बोल रहे हैं, प्रियांशु ने हमें बताया, हर बार आप मैप तो नहीं बना सकते। कैसे बनाओगे मैप? माइंड में होना चाहिए, ठीक है? तो श्लोक ने कितनी ब्यूटीफुली स्ट्रैटेजीज बताई है, ध्यान से देखिए कैसे बता रहे हैं श्लोक। वाई? बिकॉज ही इज टेकिंग क्लासेस रेगुलरली, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। आप यहीं से लगाओ। अगर आपके माइंड में ये पांचों स्ट्रैटेजीज नहीं आई, तो क्यों नहीं आई? इसलिए नहीं कि आप पढ़ नहीं रहे हो या आप वेल प्रिपेयर्ड नहीं हो या आप समझ नहीं रहे हो, इसलिए बिकॉज कहीं ना कहीं आप रूटीन में क्लासेस नहीं ले रहे हो बच्चा। क्लासेस रूटीन में लो तो आंसर्स अपने आप समझ में आए। ईरान ने शुरू किया एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस से। ईरान के पास बहुत सारी प्रॉक्सी आर्मीज हैं, ईरान को सपोर्ट करते हैं बहुत सारे टेरर आउटफिट्स। अब आप मैप में देख ही सकते हो, यमन में है ही आपका हूती है, लेबनान में इतनी वॉर चल रही है बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, हेजबुल्ला है, ठीक है, सीरिया में है, इराक में है, मिलिशिया है, उसके बाद हमास है वेस्ट बैंक में। ऑल दीज पीपल सपोर्ट ईरान। प्लस आप ये भी लिखोगे कि ईरान को सपोर्ट मिलता है फ्रॉम रशिया एंड चाइना, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मनी एंड बैकअप सपोर्ट। यस, सेकेंड स्ट्रैटेजी, ईरान ने यहां पे एसिमेट्रिक वॉरफेयर यूज की है, इसीलिए वॉर खत्म नहीं हुई। ईरान यूजेस चीप मिसाइल्स एंड ड्रोन्स, शाहिद मिसाइल, सेजिल मिसाइल, टोमाहॉक मिसाइल। यूएस के मिसाइल इंटरसेप्टर्स कमजोर पड़ गए इसके आगे, दे आर वीक नाउ। Naturally, for US, it's an exhaustive war, but for Iran, it is not. It's a cheap war. तीसरा, प्रिज्यूम करके चलते हैं, ईरान इज अ वेरी वेरी दिस थिंग, अ वेरी यूनाइटेड कंट्री। ईरान में जो नेक्सस है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ईरान बिलीव्स इन रिटेलिएशन, नॉट गिविंग अप, ठीक है? ईरान ने सस्टेन किया। इवेंचुअली बात सीज फायर की हो रही है, एक लाइन में लिखिए सीज फायर की बात हो गई। सीज फायर में पाकिस्तान ने मीडिएट किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सीज फायर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यूएस इज मेकिंग अ डिमांड कि ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट को खत्म करे। ईरान कभी करेगा नहीं, ईरान सेज आई विल नॉट डू दैट। प्लस रशिया एंड चाइना लेटेस्ट इज कि दे आर रेडी टू बाय ईरान यूरेनियम ऑल्सो। तो वॉर कंटिन्यूज। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन कि भाई वॉर खत्म नहीं। इसमें एक लाइन में आप जरूर लिखिए बच्चे, टोटल आपका 5-6 लाइन का इंट्रोडक्शन बैठेगा, जरूर लिखिए इंट्रोडक्शन में कि ईरान ने
रिटेलिएशन में अमेरिका के और यूके के सारे मिलिट्री बेसिस को अटैक किया। एग्जाम्पल जरूर देना यहां पे। साइप्रस में अटैक किया था डघेलिया अरकोटेरी, कतार में अटैक किया था अल उदीद। ऐसे कितने सारे एयर बेसिस हैं जिसको हमने अटैक किया वॉर में। किसने किया? ईरान ने किया। यूएस को बहुत लॉस हुआ, यूएस के अलाइज को बहुत लॉस हुआ। आज इन वन लाइन इट इज अ कंप्लीट वेस्ट एशियन वॉर। जो वॉर दो देश से शुरू हुई, आपको मिल जाएगी साक्षी, वो अब पैन वेस्ट एशियन वॉर बन गई। बात खत्म। आपने सारे एस्पेक्ट कवर कर दिए। वेरी गुड मार्क्स फॉर इंट्रोडक्शन। यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग अबाउट वेस्ट एशिया क्राइसिस। आपने सारे डायमेंशन कवर कर दिए। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का कर दिया, एसिमेट्रिक वॉर का कर दिया, अलाइज और ईरान की रिटेलिएशन पे कर दिया। परफेक्ट। एग्जाम्पल भी दे दी। डेटा है तो डेटा भी दे दो। और एग्जाम्पल देना है उसको और ज्योग्राफिक बनाना है। अच्छा, प्रियांशु ने एक बात कही थी, मैं उस पर कॉमेंट करना चाहती हूँ। प्रियांशु कह रहे थे कि हर बार मैप बनाना पॉसिबल नहीं बच्चे, बट आप बिना बनाए भी लोगों को मैप दिखा सकते हो। चाहे ऐसे राइटिंग हो चाहे आंसर राइटिंग हो, इतना विजुअल अपील होना चाहिए आपके ऐसे और आंसर्स में कि पढ़ने वाले को अपने आप मैप समझ में आने लगे। यही तो ब्यूटी है आंसर राइटिंग की, यही तो खूबसूरती है अच्छे आंसर की। यहां पे जब आप ईरान के बारे में लिख ही रहे थे, आप लिख सकते थे कि ईरान को डैमेजेस बहुत हुए, कोलैटरल डैमेजेस। आप जरूर मेंशन करते एक लाइन में, पर्शियन गल्फ के नॉर्थ साइड में नियर ओमान खार्ग आइलैंड है। जिसको मैप आता है वो अपने आप विजुअलाइज करेगा। क्वेश्चन के बारे में लिख सकते थे, साउथ पार्स के बारे में लिख सकते थे। एंड दैट इज हाउ यू ड्रॉ अ मैप विद वर्ड्स। यही ऐसे में भी होता है। ऐसे राइटिंग में बच्चे कहते हैं मैम कैसे हो पाएगा, खाली 300-400 वर्ड्स में हम कैसे जो है मैनेज करेंगे, इमोशंस कैसे क्रिएट करेंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ ऐसे में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो लर्न टू शो वीडियो थ्रू योर लेटर्स। अब ये तो सीखना पड़ेगा भाई ऐसा। दिस इज एन आर्ट दैट विल हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। ये खाली यूपीएससी की तो बात नहीं। लिखो तो ऐसा लिखो कि यू कैन ड्रॉ विजुअलाइजेशन, अदरवाइज फिर लिखना तो बेकार है ना। तो यहां भी यही करना है। इंट्रोडक्शन हमको समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन करने में जो लास्ट लाइन आपको लिखनी है वो क्या लिखनी चाहिए, क्योंकि अब हम जा रहे हैं इंडिया की तरफ। अभी तक हमने क्या देखा, हमने एक्सप्लेन किए सारे कीवर्ड्स। क्वेश्चन था वेस्ट एशिया में जो वॉर है, क्राइसिस। अच्छे से आपने बता दी कि वेस्ट एशिया क्राइसिस क्या है। वेल डन। अब इंट्रोडक्शन के लास्ट लाइन में ये बात जरूर लिख लेना, क्योंकि बॉडी में हम जाएंगे इंडिया की सिचुएशन पे, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक। जरूर लिख देना कि इट इज बिकॉज ऑफ दिस वॉर कि अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ल्ड का स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट है, जहां से 20 to 30% ग्लोबल ट्रेड और ऑयल पास होता है, which connects, again मैप ड्रॉ करिए, वर्ड्स में ड्रॉ करिए, which connects Persian Gulf to Musandam Peninsula या Gulf of Oman, that has been blocked by Iran. US is threatening a naval blockage of this strait. अब बताइए कौन मार्क्स नहीं देगा? ऐसे इंट्रोडक्शन पे कौन सा एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा? यू विल गेट सच गुड मार्क्स बिकॉज इंट्रो इज सो गुड। इतना आपने अच्छा, इतना पुख्ता इंट्रोडक्शन लिखा है कि वेस्ट एशिया को पूरा दिखा दिया आपने ओनली थ्रू योर वर्ड्स, मैक्सिमम इन 6 or 7 लाइन्स। ठीक है, अच्छा चलिए अब आ जाइए बॉडी पे। अब बॉडी में क्या लिखेंगे? हमने क्वेश्चन में देखा था इंडिया पे स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ा, तो इसके डायमेंशंस कवर कर लेते हैं जल्दी से। जल्दी से कर लेते हैं डायमेंशंस कवर। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्रोडक्शन का मतलब बच्चा 2-3 लाइंस नहीं होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है डिफाइनिंग ऑल द कीवर्ड्स एंड लिंकिंग देम टुगेदर। डिफाइनिंग द कीवर्ड्स एंड लिंकिंग देम टुगेदर, क्योंकि बात हो रही है 150 वर्ड्स की, और जो बहुत सारे होते हैं। 150 वर्ड्स में आप आराम से एलोकेट कर सकते हो अबाउट 60 to 70 वर्ड्स इन योर इंट्रोडक्शन। कोई प्रॉब्लम नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। पैरा लिखें कि पॉइंट्स में लिखें? पॉइंट्स में लिखिए, हमेशा पॉइंट्स में लिखिए। ऑलवेज राइट इन पॉइंट्स, दैट इज माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन। ऐसे को हमेशा पैराग्राफ में लिखिए, हमेशा पैराग्राफ में लिखिए। ठीक है, एंड एसेज को पैरा और आंसर्स को पॉइंट्स। आंसर्स को जितना साइंटिफिक लिख सकते हैं लिखो, जितना डेटा डाल सकते हैं डाल, जितना पॉइंट वाइज साइंटिफिक ग्रिड वाइज दे सकते हैं दीजिए। अगर कोई बॉडी बनाना चाहते हैं, टेबल बनाना चाहते हैं कॉज और इफेक्ट की, प्लीज बनाइए, प्लीज बनाइए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आराम से लिख सकते हैं। परफेक्ट प्रियांशु। इसमें ऊपर नीचे चलता है,
कंक्लूजन कैन बी द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ योर आंसर. आप उसको 30-40 वर्ड्स में कंक्लूड करना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई ऐसे नहीं है कि कंक्लूजन आपका बहुत ज्यादा जो है इमोशनल होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए. कंक्लूजन का यहां मतलब है जस्ट क्लोजिंग द स्ट्रक्चर. इट कैन बी अबाउट 30-40 वर्ड्स, दैट्स टोटली ओके. मेक श्योर इंट्रोडक्शन में कीवर्ड्स पूरे आए, उनके बीच में लिंक पूरे आए, और बॉडी में आपने जो मांगा है वो पूरा डायमेंशन को एड्रेस किया है. ठीक है, अब हम बॉडी में आ जाते हैं. चलो, बॉडी में हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स की. सबसे पहले क्या बात करते हैं? बात करते हैं पहले इकोनॉमिक पॉइंट्स की. चलिए, इकोनॉमिकली इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ गया है बॉडी पॉइंट वाइज. वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड. क्या इंपैक्ट पड़ा इंडिया में इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक फॉल आउट? सबसे बड़ा इंपैक्ट तो एनर्जी डेफिशिएंसी, एनर्जी क्राइसिस. क्यों? क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में बता दिया आपने कि हॉर्मोज अब क्लोज्ड है. तो नेचुरली आप बॉडी में ये बताओगे इन पॉइंट नंबर 1, इंडिया इज एन इकोनॉमी दैट इज हेविली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस. गिव द डेटा. 60% of LPG is imported from outside. Similarly, 88 to 90% of crude is also imported from outside. Majority of India's oil, majority of India's gas, it all comes from Strait of Hormuz. Very good, Shlok. On top of it, India पे tariff चल रहा है 2025 से. India has been battling US tariff. That means capital outflow, Indian currency has depreciated. आपकी करेंसी नीचे गिर रही है, डेप्रिशिएट हो गई है. 90% आप इंपोर्ट करते हो ऑयल. हॉर्मुज ऑलरेडी बंद हो चुका है. नेचुरली इंडिया में तो हो ही रही है इकोनॉमिक क्राइसिस. एलपीजी प्राइसेस आर शूटिंग अप. ऑयल प्राइसेस आर क्रॉसिंग $100 पर बैरल. इंडिया में स्कीम्स चलती हैं जैसे उज्ज्वला स्कीम, 33 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हैं. तो इंडिया में डेफिनेटली इट इज कॉजिंग अ करंट अकाउंट डेफिसिट. इट इज कॉजिंग अ करंट अकाउंट डेफिसिट. इट इज कॉजिंग ट्रेड डेफिसिट इन इंडिया. सबसे बड़ा चैलेंज, सेकेंड चैलेंज रेमिटेंस का है. सेकेंड चैलेंज किसका है? रेमिटेंस का है. इंडिया इज अ कंट्री, मैंने मॉर्निंग क्लास में भी बताया था बच्चों को, जो लोग मॉर्निंग में मेरे साथ थे क्लास में. आई टोल्ड यू बच्चे कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो मैक्सिमम अपनी नेशनल इनकम, हमारी जो इनकम है वो रेमिटेंस पे बेस्ड है. ठीक है, सबसे ज्यादा केरला में है. माधव, वेरी गुड, वेरी गुड. सबसे ज्यादा जो हमारी इनकम में कंट्रीब्यूशन है पूरी दुनिया में अगर आप कंपेयर कर लो तो इंडिया इज एट द टॉप व्हेन इट कम्स टू फॉरेन रेमिटेंस. क्या होती है ये? जो इंडियन सिटीजन्स अब्रॉड रह के पैसा कमाते हैं and then they send it back to the country, right? That is called remittance. इंडिया में बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है रेमिटेंस की, बहुत मनी आता है रेमिटेंस से. दिस इज अ वैल्यू एडिशन टू आवर इकोनॉमी. अब ये डेटा याद रखिए. इंडिया इज वर्ल्ड लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसिपिएंट. इंडिया टॉप में है रेमिटेंस लेने के वर्ल्ड में. कितनी आती है रेमिटेंस आपको पता है? $129 बिलियन एनुअल. कितनी आती है? $129 बिलियन एनुअल. बहुत ज्यादा है, राइट? गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज जीसीसी 38% शेयर रखते हैं इंडिया की टोटल रेमिटेंस का. अब आप सोचो, इट इज स्ट्रेंज और नॉट? पहले तो इंडिया वर्ल्ड में टॉप पे है व्हेन इट कम्स टू रेमिटेंस. उसमें भी 38% कहां से आती है? जीसीसी से आती है, गल्फ से आती है. कैसे आएगी अगर वहां वॉर हो गई तो? कौन है कंट्रीज जो मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में रेमिटेंस के लिए? वेरी गुड श्लोक, वेरी गुड. टॉप पे यूएई है, 19.2% रेमिटेंस उस इंडिया में आती है. सेकंड सऊदी अरेबिया 6.7%. थर्ड कतर, कुवैत, ओमान, इन सब से इंडिया में रेमिटेंस मिलती है. अगर यहां वॉर हो गई एंड इंडियंस लूज देयर जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट तो कैसे भेजेंगे रेमिटेंस? इट इज ऑल्सो अ रिस्क टू देयर लाइफ एंड सिक्योरिटी. यहां एक और छोटा सा डायमेंशन आप डाल सकते हो. इट विल ऑल्सो रूइन इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड ना. ऑल दीज आर यंग इंडियंस हु आर वर्किंग इन दीज कंट्रीज. अगर उनको अटैक हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें इंजुरी हो जाती है, तो फॉर इंडिया इट इज अ लॉस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑल्सो. सेफ्टी सिक्योरिटी इज इन कंसर्न, है कि नहीं? तो ये दोनों पॉइंट्स तो इकोनॉमिक हो गए. एक और इकोनॉमिक पॉइंट इसका ये होगा कि हम ऑलरेडी न्यूज में पढ़ रहे हैं कि फूड प्राइसेस विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर आपका ऑयल प्राइस इतना ज्यादा है, एलपीजी प्राइस इतना ज्यादा है, सो नेचुरली ट्रांसपोर्टेशन विल बिकम अ चैलेंज. सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाएगा. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगा. श्लोक, वेरी गुड.
प्राइसेस बढ़ने लगेंगे होलसेल कमोडिटीज के, एग्रीकल्चर्स के, फर्टिलाइजर के, तो क्या उससे इंडिया में फूड डेफिशिएंसी नहीं होगी? होगी ना। तो दैट इज अगेन इकोनॉमिक कॉस्ट दैट इंडिया इज पेइंग। एंड एट द सेम टाइम जब इंडिया को हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से ऑयल खरीदना पड़ेगा ईदर फ्रॉम रशिया, और इंडिया विल हैव टू बाय मोर वेस्टर्न टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल, ब्रेंट क्रूड, तो वो एक्सपेंसिव भी तो है, तो ज्यादा पैसे लगेंगे। ऑलरेडी करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है इन इंडिया, वी विल हैव अ वेरी डिजास्ट्रस सिचुएशन एंड जीडीपी विल फॉल डाउन। तो ये तो होगा इकोनॉमिक इंपैक्ट, हमने 3 से 4 कवर कर लिए। अब बात करते हैं स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट की, वो भी कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट इसलिए इतना ज्यादा इंडिया पे डिजास्ट्रस है क्योंकि दिस वेस्ट एशियन वॉर इज अ स्ट्रेस, ये एक टेंशन है जो मैरिटाइम चोक पॉइंट्स पे हुआ है, मैरिटाइम चोक पॉइंट्स पे हुआ है। Not only is it dangerous for Indian diaspora and remittance flow, also it matters to India's relations with the country of West Asia, है ना। डियास्पोरा की कंसर्न तो है ही हमें, जो इंडियंस की डेथ हो रही है वो तो प्रॉब्लम है ही हमें, जो उनको डेंजर है वो तो ऑब्वियसली इट्स अ मैटर फॉर कंसर्न टू अस। बट सबसे बड़ा कंसर्न क्या है स्ट्रैटेजिकली, इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाएगा? हाउ विल इंडिया नाउ मेंटेन अ वेरी न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी, आप मुझे ये बताओ। अब इसको बोलने के लिए यू हैव टू गिव अ स्मॉल बैकग्राउंड, यू विल हैव टू से इन 2 लाइन्स कि इंडिया इज वन कंट्री विच फ्रॉम द टाइम्स ऑफ कब से, वेरी गुड, फ्रॉम द टाइम्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू हैज बिन फॉलोइंग नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना। इंडिया डजंट टेक द फेवर ऑफ एनी वन कंट्री, इंडिया तो स्ट्रेटेजिकली इंडिपेंडेंट है। कब ऐसा हुआ था? कोल्ड वॉर में हुआ था, इंडिया हैड अ रिलेशन विद बोथ यूएसएसआर एंड यूएसए। बट अब टाइम्स हैव चेंज्ड, इंडिया की जो न्यू पॉलिसी है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? वेरी गुड, स्ट्रैटेजिक नॉन अलाइनमेंट टू स्ट्रैटेजिक मल्टी अलाइनमेंट। सबसे प्यारा वर्ड जो यहां यूज करना चाहिए टू गेट मैक्सिमम मार्क्स, टू मेक अ सॉलिड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर, डीहाइफिनेशन, डीहाइफिनेशन। लेकिन एग्जाम्पल भी देने पड़ेंगे, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल भी देना पड़ेगा। इंडिया बिलीव्स इन स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, इंडिया बिलीव्स इन डीहाइफिनेशन। एग्जाम्पल, recently India's prime minister Mr Modi went to Israel right before Mr Khamenei's death. India promised a lot of trade diversification कि इजराइल और इंडिया में ट्रेड होगा, लेकिन इंडिया ने कुछ भी कोशिश नहीं करी टू टॉक अबाउट द पैलेस्टीनियन इशू। इंडिया ने पैलेस्टीन के बारे में कोई बात नहीं की जब इंडिया इजराइल में था। इजराइल और इंडिया ने पैक्ट साइन की, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में की, डीसैलिनाइजेशन टेक्नोलॉजी में करी है, ठीक है, सपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में करी है, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू इजराइल। लेकिन इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला, एग्रीकल्चर में किया है, बट इंडिया ने कुछ नहीं कहा अबाउट पैलेस्टीन इशू, क्योंकि इंडिया सेड दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन, आई विल नॉट इंटरफियर, है ना। सिमिलरली रिसेंटली व्हेन मिस्टर खामिनी डाइड, मिस्टर खामिनी जो कि सुप्रीम लीडर थे ईरान के, उनकी डेथ क्यों हुई? ही वाज अटैक्ड बाय यूएस एंड इजराइल, लेकिन ये दोनों तो इंडिया के फ्रेंड्स हैं। सो इंडिया डिसाइडेड टू कम आउट एंड इशू कॉन्डोलेंसेस, इंडिया ने सपोर्ट एक्सप्रेस किया ईरान को, इंडिया ने वॉर को भी रिजेक्ट किया है। इंडिया हैज रिक्वेस्टेड फॉर पीस एंड सीज फायर, इंडिया सपोर्ट्स 2 स्टेट सोल्यूशन, पैलेस्तीन को भी इंडिया चाहता है कि सेपरेट कंट्री बन जाए फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड्स। इंडिया कीप सेंडिंग मेडिसिन, क्लोथ्स, मनी, इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द पीपल ऑफ गाजा स्ट्रिप, इंडिया ने कभी मना नहीं किया। एट द सेम टाइम इंडिया इज द लीडर व्हेन इट कम्स टू सेंडिंग ट्रूप्स टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी फोर्सेस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी फोर्सेस में इंडिया का टॉप कंट्रीब्यूशन। तो यही होता है डीहाइफिनेशन। इंडिया हैज अ रिलेशन विद इजराइल, इंडिया हैज अ रिलेशन विद ईरान सेपरेटली। इनफैक्ट इंडिया तो ईरान से बहुत ऑयल भी खरीदता था, हमने तब स्टॉप किया जब यूएस के सैंक्शंस आए ईरान पे, ठीक है। सिमिलरली इंडिया हैज वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद द कॉज टुवर्ड्स पैलेस्टीन लिबरेशन मूवमेंट। एट द सेम टाइम इंडिया हैज अ वेरी गुड रिलेशन विद सऊदी अरेबिया एंड यूएई ऑल्सो। इंडिया ने सऊदी अरेबिया के साथ अभी स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग साइन किया है, लेकिन डायलॉग साइन करते टाइम ये भी बोला है, आई एम नॉट सेंडिंग एनी मिलिट्री, आई एम नॉट सेंडिंग एनी मिलिट्री, इंडिया इज नॉट पाकिस्तान। इंडिया ने साइन किया है स्ट्रैटेजिक डिफेंस डायलॉग, लेकिन इंडिया ने कहा है कि मैं कोई मिलिट्री नहीं भेजूंगा आपके लिए,
I will not interfere in the war in West Asia between you or Iran, between you or UAE. I am not doing that. Only we will support each other towards more military and defense co-production. हम कोई मिलिट्री नहीं भेजेंगे. Similarly, सऊदी अरेबिया के रिलेशंस खराब है विद यूएई, लेकिन इंडिया हैज रिसेंटली साइंड, क्या साइन किया है यूएई के साथ? क्या साइन किया है हमने? कोई एग्रीमेंट साइन किया था यूएई के साथ? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सेपा साइन किया है. ठीक है, ओमान के साथ भी किया है, यूएई वेरी गुड, यूएई के साथ भी किया है, और सऊदी के साथ तो किया ही है, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग. ठीक है, सो दिस इज डिहाइफिनेशन. ये सब आपस में लड़ते हैं, बट इंडिया इज गुड फ्रेंड्स विद ईच वन ऑफ देम. रिसेंटली एमबीजी फ्रॉम यूएई केम टू इंडिया. यूएई के लीडर इंडिया आए थे, इंडिया ने वेलकम भी किया और आपस में बात भी की है टू बूस्ट बायलेटरल ट्रेड. लेट्स रिमेंबर, यूएई से सबसे ज्यादा रेमिटेंस हमें मिलती है. आफ्टर अमेरिका यूएई इज द सेकंड टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रिलेशंस में, रिलेशंस आर वेरी गुड. आज आप देखो सिचुएशन क्या हो गई है इन वेस्ट एशिया. ऑल दीज आर अमेरिकन अलाइज, ये सब प्रो अमेरिकन अलाइज ही तो है. सऊदी, यूएई, ओमान, कुवैत, सबके पास यूएस के बेसिस हैं. ईरान ने सबको अटैक किया, लेकिन फिर भी इंडिया ईरान से भी फ्रेंडशिप रखता है और इन सारी कंट्रीज से भी वी हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप. दिस इज कॉल्ड डिहाइफिनेशन. इज इट क्लियर? इसी को कहते हैं बच्चे डिहाइफिनेशन, जहां पे आपकी फॉरेन पॉलिसी कुछ ऐसी है दैट यू डू नॉट बिलीव इन परमानेंट फ्रेंड्स, यू डू नॉट बिलीव इन परमानेंट एनिमीज, यू बिलीव इन having a balanced neutral relations with every single country. ठीक है, तो यहां हमने क्या कवर किया बॉडी में? सबसे पहले इकोनॉमिक डायमेंशन, सेकंड स्ट्रैटेजिक डायमेंशन. लेकिन क्योंकि आप स्ट्रैटेजिक डायमेंशन की बात कर रहे हो, तो एक चीज है जो हम भूल गए. देयर इज वन थिंग दैट यू हैव फॉरगॉटन टू मेक योर आंसर 360 डिग्री. एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी. आपको याद होगा अभी कुछ मंथ्स पहले, अगेन वही बात है, जो बच्चे डेली क्लास लेते हैं, जो बच्चे रोज न्यूज पढ़ते हैं, उन्हें याद होना चाहिए. अभी रिसेंटली ईरान की एक शिप थी जो इंडिया में आई थी. इट वॉज अ वॉरशिप फ्रॉम ईरान जो इंडिया आई हुई. हाँ, वेरी गुड, इंडिया आई थी ना, किसी एक्सरसाइज में पार्ट लेने आई थी. आइरिस डेना नाम था उसका. उसको किसने अटैक किया? यूएस ने उस पर भी अटैक कर दिया. एंड कितना शॉकिंग था ना कि ये शिप कोलैप्स कर गई नियर श्रीलंका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. कितना सैड है. अब इंडिया के लिए ये कितना इंसल्टिंग था, आप मुझे बताओ. कितना ह्यूमिलिएटिंग था इंडिया के लिए कि इंडिया ने किसी गेस्ट को इनवाइट किया टू टेक पार्ट इन अ मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, और इंडिया से रिटर्न करते टाइम यूएस ने उसे अटैक किया एंड इट वाज डिस्ट्रॉयड. श्रीलंका हैड टू कम इन, यस, श्रीलंका हैड टू कम इन सपोर्ट दीज पीपल. यूएस ने नहीं किया. यहां पे अगेन इंडिया का रोल क्वेश्चनेबल बन गया. क्यों? क्योंकि हम इस क्वेश्चन में स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट देख रहे हैं. तो स्ट्रैटेजिकली इंडिया का क्या रोल है जो श्लोक ने बताया? इंडिया इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन एरिया, है ना. तभी तो इंडिया ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन एक्सरसाइज लाइक मिलान, कोंकण, मालाबार. यूके के साथ कोंकण, मालाबार क्वाड क्यों करता है इंडिया? क्योंकि इंडिया को तो भाई प्रोवाइड करना है ना बाकी देशों को सिक्योरिटी. वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ हो आप, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हो, महासागर पॉलिसी है आपकी. सागर बंधु आपने इतनी हेल्प की थी श्रीलंका की ड्यूरिंग दैट वेरी बिग ट्रेजेडी साइक्लोन दितवा. सो इंडिया ने क्या किया? इंडिया रिस्पॉन्ड. इंडिया ने रिजेक्ट की ये चीज. इंडिया रिजेक्टेड दिस अटैक ऑन ईरान फ्रॉम यूएस. अगेन दिस शोज इंडिया हैज अ वेरी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. अगर कहीं कोई चीज गलत हो रही है, चाहे वो यूएस गलत कर रहा हो, फिर चाहे वो कोई गलत कर रहा हो लाइक ईरान, तो इंडिया इस बारे में ओपनली कमेंट करता है. अब रिसेंटली ईरान ने क्या करना शुरू कर दिया? ईरान कहता है आई विल कंप्लीटली ब्लॉक हॉर्मुज, और मैं बाबल मंदेब स्ट्रेट है उसको भी ब्लॉक कर दूंगा. तो इंडिया ने बोला है कि दिस इज नॉट करेक्ट, यू आर ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ यूएनसीएलओएस. गलत है ना. हाँ श्लोक, आप 5 कंट्रीज को अलाउ करोगे, बाकी सबको मना कर दोगे, बट ये तो रूल ब्रेकडाउन. तो इंडिया ने ये चीज भी ओपनली एक्सप्रेस कर दी है. एट द सेम टाइम इंडिया ने उस समय पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया. इंडिया एक्चुअली सेड कि इफ पाकिस्तान वांट्स टू मीडिएट और वॉर खत्म हो जाए तो गुड, मेरे लिए तो अच्छा ही है. इंडिया क्यों चाहेगा वॉर हो? इंडिया का डायस्पोरा वहां पे है, इंडिया को भी तो लॉस हो रहा है ना. ठीक है ना. सो दिस इज परफेक्ट स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, मल्टी स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट, डिहाइफिनेशन जो अब इंडिया कर रहा है.
So that's how we will cover up the body of this question. Economic dimension mein we gave 2-3 points. Strategic dimension mein we gave 2-3 points, including all the good words with examples. एग्जाम्पल देने पड़ेंगे. अगर बात की थी डिहाइफिनेशन की, तो फिर ओमान के और यूएई के साथ सेपा जरूर लिखिए यूएई एंड सऊदी हैव अ बैड रिलेशन टुडे. ऑल दीज आर प्रो अमेरिकन, दे आर फाइटिंग ईरान, लेकिन इंडिया का इनसे भी रिलेशन है, ईरान से तो है. ठीक है ना? हाँ, वेरी गुड. जैसे जैसे कि इंडिया इज नॉट लाइक पाकिस्तान. पाकिस्तान कर सकता है एसएमडीए, क्योंकि पाकिस्तान इज प्लेइंग अ गेम शोइंग इट्स न्यूक्लियर पावर. इंडिया ने ऐसा कभी नहीं किया. इंडिया कभी मिलिट्री इन्वॉल्व नहीं होता. एंड दैट इज डिहाइफिनेशन, कि आप मिलिट्री भी नहीं भेज रहे हो, आप इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते हो, एंड स्टिल यू आर एक्चुअली सपोर्टिंग द जस्टिस कॉज. एट द सेम टाइम जब ये बना था आपका, इतनी बड़ी बॉडी बनी थी, कौन सी थी वो, गाजा पीस बोर्ड, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बनाई थी 15 पॉइंट प्रोग्राम के बाद, तो इंडिया ने पहले ज्वाइन भी नहीं किया. देन व्हेन यूएस सेड कि आप ज्वाइन कर लो, तब जाके फिर इंडिया ऑब्जर्वर बना. अगेन ये डिहाइफिनेशन ही तो है. अच्छा, इसका एक और एग्जांपल है जो यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है, ये तो वेस्ट एशिया का इशू है, इसलिए यहाँ पे तो ये चीज होती नहीं है अप्लाई, बट इन जनरल आई एम टेलिंग यू, अगर ये क्वेश्चन वेस्ट एशिया पे ना होता, खाली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे होता, तो फिर आप यहाँ पे एक एग्जांपल और दे सकते थे, ब्रिक्स का. इंडिया 2026 में ब्रिक्स को होस्ट कर रहा है. ब्रिक्स का मेन एजेंडा है डी डॉलराइजेशन, लेकिन इंडिया ने बोल दिया आई एम नॉट डूइंग डी डॉलराइजेशन. ये भी डिहाइफिनेशन. यू हैव द पावर टू से दैट टू रशिया एंड चाइना, जो ऑलरेडी युआन में डील कर रहे हैं कि हम नहीं करेंगे ये काम. सॉरी. इंटरेस्टिंग है ना ये बात बहुत ज्यादा. एट द सेम टाइम इंडिया ने, ये भी इंडिया में करेज है कि इंडिया हैज ओपनली सेड, इंडिया ने ओपनली ये कई चीज कही है कि चाहे मुझे चाइना से खतरा हो सकता है, मे बी आई हैव फियर दैट चाइना विल कम एंड मोनोपोलाइज इंडियन ओशन, लेकिन उसके बाद भी आई विल नॉट सपोर्ट अमेरिका व्हेन इट कम्स टू यूनिलैटरल टैरिफ. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. और कुछ भी कह लो आप, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कितना भी प्रेशर किया हो, कितना भी टैरिफ इंपोज किया हो, बट रियलिटी है कि इंडिया वाज इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, इंडिया इज इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया, इंडिया विल कंटिन्यू टू इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम रशिया. ठीक है, तो वो चीज कभी खत्म नहीं होगी. सो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ डिहाइफिनेशन. अब आपका क्वेश्चन 100% कंप्लीट है. आइडियली इसमें किसी को भी नहीं मिलने चाहिए 7.5 से कम मार्क्स, मिलने का कोई चांस नहीं है. फिर कंक्लूजन में आप क्या लिखेंगे? कंक्लूजन में आप लिख सकते हो, देयरफॉर वेस्ट एशियन क्राइसिस has really impacted India economically as well as geopolitically. But again, it is an opportunity कि India is emerging as the leader of the world, a new superpower, विश्व गुरु, by learning its lesson. अब इंडिया सीख रहा है ये लेसन कि कैसे we have to diversify our imports, not just West Asia, Hormuz, but from many more countries parallelly, जो चाइना करता है. And geostrategically, we have been successful. हमारी डिहाइफिनेशन की पॉलिसी हाईली सक्सेसफुल है, तभी तो इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ है वॉर में. पाकिस्तान तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो रहा है, इंडिया नहीं हुआ. ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन एंड योर आंसर. अब इस आंसर में आप देखो, डेटा भी है, पॉइंटर्स भी है, डेफिनेशन भी है, एंड करंट एग्जांपल्स भी हैं. तो इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स में आप जब भी आंसर लिखते हो, हमेशा उसे रेलिवेंट बनाइए बाय राइटिंग करंट अफेयर्स. और करंट अफेयर्स का हैंग तभी आएगा जब आप उन्हें डेली फॉलो करोगे. अच्छा, किसी बच्चे ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम आई हेट रीडिंग न्यूज़पेपर. आई अंडरस्टैंड, ठीक है, सबको अच्छा नहीं भी लगता है, लेकिन अगर आप मंथली मैगजीन फॉलो करते हो, तो क्या आप ये माइन्यूट पॉइंट्स याद कर पाओगे? आपको ये छोटी छोटी सारी बातें याद रहेंगी जो डेली न्यूज़पेपर में आती हैं, जो नए वोकैबुलरी हम लोग सीखते हैं, है ना? वो कैसे आपको समझ आएगा? टाइम मैनेजमेंट इज ऑलवेज एन इशू जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे. प्रैक्टिस तब, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चे, टाइम मैनेजमेंट समझ में नहीं आएगा. सबसे पहले क्वालिटी और कंटेंट पे काम करना, फिर टाइम मैनेजमेंट पे करना, अदरवाइज कोई फायदा नहीं होगा. बहुत सारे बच्चे टाइम पहले मैनेज करना शुरू कर देते हैं कि चलो मैं सिर्फ 6 मिनट्स में आंसर लिखूंगी, आई विल ओनली राइट इन 6 मिनट्स, और फिर कंटेंट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता. वो गलत स्ट्रैटेजी, गलत स्ट्रैटेजी, बिल्कुल गलत. अगर आप एथलीट भी हो और आप दौड़ना सीख रहे हो, आपको अपने आप को टाइम करना है, तो पहले दौड़ना सीखोगे कि पहले टाइमिंग करोगे? टाइमिंग इज ऑलवेज लेटर ना, पहले कंटेंट तो आए. सबसे पहले फोकस करिए अपने आंसर्स को कंटेंट रिच बनाने में. जब आपको लगे कि मेरे आंसर्स कंटेंट रिच होने लगे हैं, दीज आर मार्क्स डिमांडिंग आंसर्स, तब सेकंड स्टेप आता है हमारा टाइम मैनेजमेंट. सारे क्वेश्चंस इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम कंज्यूम भी नहीं करते, और सारे क्वेश्चंस हमें आते भी नहीं होंगे.
ठीक है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी ये है कि जो क्वेश्चन हमें अच्छे से आता है, हमारा वेल प्रिपेयर्ड है, उस पर तो जस्टिस करना ही है। वी हैव टू मेक इट परफेक्ट, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन अच्छे से राउंड अप करना है। जो नहीं आते उन्हें एज क्लोजली एज पॉसिबल अटेम्प्ट हम कर सकते हैं, दैट इज वन थिंग वी कैन डू। लेकिन टाइम ऑलवेज कम्स इन द एंड, पहले कंटेंट, फिर चाहे ऑप्शनल हो, चाहे ऐसे हो, चाहे सीसैट हो। सीसैट में बच्चे कहते हैं मैम कितना टाइम लगना चाहिए, मैं सच बताऊं तो बस 1 मिनट लगना चाहिए। पैसेज में 1 मिनट, मैथ्स में 1 मिनट, इससे ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए ना। लेकिन इशू एक और भी है कि जब तक सॉल्व करना नहीं आएगा तब तक टाइम का आप करोगे क्या। तो पहले टाइम प्रैक्टिस करो, पहले सॉरी कंटेंट प्रैक्टिस करो, पहले फुल प्रूफ आपको आना तो चाहिए सॉल्व करना। टाइम प्रैक्टिस कम्स आफ्टर दैट, फिर सब्जेक्ट कोई भी हो दुनिया में, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं वो क्या है, एनालाइज नहीं कर रहे हो आप स्टोरी लिखते चले जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन की जो हमने अभी डिस्कस किया, इसमें पता लगा आपने वेस्ट एशियन क्राइसिस तो लिखा नहीं, आपने कोई स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट नहीं बताया, आपने एक स्टोरी बता दी। यूएस हेट्स ईरान, शिया सुन्नी का फैक्टर था, ईरान में तो भाई सुप्रीम लीडर है, थियोक्रेसी है, 1979 पे रेवोल्यूशन हुआ था, अब इंटरनल प्रोटेस्ट चल रही थी, फिर वो भी खत्म हो गई, फिर अमेरिका ने अटैक कर दिया, फिर ईरान ने रिटेलिएट कर दिया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। अब आप लिखते ही चले जाओगे, आपको खुद ही नहीं समझ आएगा कि वेयर आई हैव टू एंड एंड वेयर आई हैव टू टेक अ पॉज। इसीलिए आंसर का स्ट्रक्चर सबसे पहले अपने माइंड में रखो, सबसे पहले आंसर लिखो अपने माइंड में, उसके बाद इट शुड कम ऑन द पेपर। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डू रफ वर्क, इसमें कोई शेम की बात नहीं है। द मोर यू आर प्रिपेयर्ड विद द स्ट्रक्चर द बेटर इट इज, ठीक है। सेकेंड, इग्नोरिंग इंडियाज एंगल। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर हमने वेस्ट एशिया के बारे में खूब अच्छे से लिख दिया होता, लेकिन इंडिया के जो स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं उन पे फोकस ना किया होता, तो हमें मार्क्स नहीं मिलते। बच्चे कहते कि मैम पूरा लिख के आई थी मैं तो वेस्ट एशिया पे, मैंने तो किसी को भी नहीं छोड़ा, खामेनी से लेकर के मैंने ना हर एक के बारे में लिख दिया, हर एक को पकड़ पकड़ के लिख दिया, मैंने पूरा ईरान छाप दिया पेपर में, लेकिन मार्क्स तो आए ही नहीं। तो क्यों आएंगे फिर, जब अगर इंडिया का एंगल लिखा ही नहीं तो मार्क्स क्यों आएंगे। अगर आप किसी शॉप में जाओ और उसको बोलो एक्सक्यूज मी कैन आई बाय 1 kg फ्रूट, अब वो आपको फ्रूट्स तो देना, अब वो आपको कुछ ना कुछ देता रहे कि लो बिस्किट्स भी ले लो, लो वेजिटेबल भी ले लो, दूध भी ले लो, कर्ड भी ले लो, प्रोटीन खा लो, आप कितना इरिटेट हो जाओगे ना। आप कहोगे भाई पैसे तुम्हें पूरे ही दे रहे तो अब नहीं दूंगी मैं तुम्हें पैसे, क्यों दोगे, आप पे नहीं करोगे ना, आप कहोगे मैंने ये मांगा ही नहीं तो इसके पैसे क्यों मिलेंगे। तो बेटा जो क्वेश्चन ने नहीं मांगा उसके मार्क्स भी नहीं मिलेंगे फिर, है ना, उसके मार्क्स भी नहीं मिलते। इफ आई एम गोइंग टू बाय अ वाटर बॉटल एंड ही इज गिविंग मी अ कप ऑफ टी, तो मैं 10 रुपए नहीं दूंगी, कभी नहीं दूंगी। तो सिमिलरली एग्जामिनर भी नंबर नहीं देगा अगर जो मांगा है वो नहीं लिखा हो। यू हैव टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। नॉलेज सबके पास होती है, जो एग्जाम दे रहा है कुछ तो पढ़ के पास किया ही होगा प्रीलिम्स, ऐसे तो नहीं पास हो गया होगा। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड फुलफिल की मार्क्स तब मिलते हैं, नॉलेज के मार्क्स नहीं मिलते। देर आर लॉट ऑफ नॉलेजेबल पीपल, बहुत बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड दुनिया में लोग हैं, सिलेक्शन नहीं होता है उनका भी, ऐसा होता है। मे बी समथिंग वॉज लैगिंग इन द आंसर राइटिंग स्टाइल। ऐसा भी हो जाता है कई बार कि बहुत ज्यादा तैयारी नहीं कर पाया बच्चा, फ्यू मंथ्स की तैयारी है लेकिन आंसर राइटिंग का स्किल बहुत अच्छा है और बेसिक नॉलेज है, लेकिन पास हो गया बच्चा। वाई, बिकॉज आपने वो लिखा जो क्वेश्चन को चाहिए। तो इसीलिए प्लीज यहां वहां नहीं जाना है, डू जस्टिस विद द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से बहुत फर्क पड़ता है। यूपीएससी को बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस एग्जाम में। एग्जामिनर विल गिव यू मोस्ट मार्क्स, लेकिन तब जब यू हैव गिवन अ 360 डिग्री कवरेज। जैसे इस आंसर में आपका इंटेंशन होना था 360 डिग्री कवरेज का, थोड़ा बहुत ईरान की ज्योग्राफी पे किया, थोड़ा बहुत ऑयल सप्लाई पे किया, ट्रेड रूट पे, हॉर्मुज पे किया, एग्जाम्पल दिए, मैप पे बेस्ड होके दिए, डायस्पोरा की सेफ्टी पे दिए, डेटा दिया कि इंडिया कितना रेमिटेंस लेता है, इंडिया के लिए मैटर क्यों करता है, इसमें भी आपने डेटा दिया कि भाई 60% गैस आती है, 88% एनर्जी आती है, स्ट्रैटेजिक टाइज इंडिया के सारे देशों के साथ बराबर हैं। दैट्स हाउ इट वर्क्स, दैट्स हाउ इट वर्क्स। इंट्रोडक्शन में कीवर्ड डिफाइन कर दिया, क्राइसिस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और एक कीवर्ड डाल दिया, एक थ्रेड बना दिया कि हॉर्मुज से लेके प्रॉब्लम। बॉडी में पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट लिखा, स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट लिखा, थोड़ा सा एग्जांपल दिया डिहाइफिनेशन के बारे में, स्ट्रैटेजिक मल्टी अलाइनमेंट के बारे में, काम खत्म, काम खत्म। दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैड टू डू। और अगर ये किया है तो मार्क्स क्यों नहीं आएंगे। कंक्लूजन, इंडिया ने अपने लेसन सीख लिए, ऑयल है तो डाइवर्सिफाई करो लाइक चाइना, और अगर अलाइनमेंट है तो वो तो आप सक्सेसफुली कर ही रहे हो, डिहाइफिनेशन आपने अच्छा कर लिया, वेरी गुड। सिमिलरली कल को अगर बबल मंदिर भी बंद हो जाए लेकिन अगर आपके सोर्सेज डाइवर्सिफाइड है तो यू हैव नथिंग टू लूज, और डिहाइफिनेशन इज अ वेरी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी।
तभी तो वी आर सेइंग कि बाय 2047 हम बन सकते हैं विश्व गुरु, एटलीस्ट स्ट्रैटेजिकली तो बन ही सकते हैं, इफ दिस इज द फॉरेन पॉलिसी दैट वी आर नाउ यूजिंग। ठीक है, वेरी गुड। अगर हमने, कुड यू साइट एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक और पॉलिटी? सो आर यू टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक या किसी और टॉपिक के बारे में? कोई और टॉपिक के बारे में या इसी टॉपिक के बारे में? इफ यू आर आस्किंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, तो देन देर इज नो नीड टू राइट एनी पॉलिटिकल डायमेंशन, वो कवर हो गया स्ट्रैटेजिक में। अगर आप किसी दूसरे टॉपिक की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे थे इंडिया में इतना डिस्ट्रेस माइग्रेशन क्यों है, why do so many people in India actually migrate from village to city on a daily, weekly, monthly basis, और अर्बन पॉवर्टी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है? सेम अप्रोच लेनी है। इंट्रोडक्शन में डिफाइन करिए माइग्रेशन है क्या, स्पेशली डिस्ट्रेस माइग्रेशन क्या होता है ना, क्या होता है बताइए। इट ओनली हैपेंस बिकॉज इंडिया अ कंट्री जहां पे मेजोरिटी इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, मोर देन 60%, राइट द डेटा। दे आर नॉट गेटिंग एनी प्रोडक्टिव बेनिफिट फ्रॉम दैट, आपको नहीं मिल रहा है, ना ही आपकी पर कैपिटा इनकम सफिशिएंट है, ना ही आपके पास लैंड अवेलेबल है टू कल्टिवेट मोर बिकॉज ऑफ फ्रैगमेंटेशन एंड लैंड सीलिंग लॉज ऑफ द गवर्नमेंट, ना ही एग्रीकल्चर इज अ वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस राइट नाउ। देन प्लीज राइट द एग्जांपल of disguised unemployment, seasonal unemployment. Give some data if possible. Then write about mechanization, कि जो भी मैकेनाइजेशन हुआ उसका भी कोई बेनिफिट उनको नहीं हो रहा है जो कि एग्रीकल्चर लेबर में है। लेस अपॉर्चुनिटीज, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसके कारण लोगों ने क्या किया है, दे हैव स्टार्टेड मूविंग आउट। इसको डिस्ट्रेस माइग्रेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी खुशी से तो नहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग टू फाइंड अ बेटर जॉब, आप जाते हो सिटी चले जाते हो। There are certain states in India, please write example, Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, जहां interstate migration बहुत ज्यादा है, from one state to another. These are primarily agricultural states. So people migrate towards industrial states like Tamil Nadu, Andhra, Telangana, Karnataka. But there are some states जहां पे, for example Karnataka, for example Maharashtra, जहां intrastate migration बहुत ज्यादा है, लोग विलेज से सिटी जाते हैं टू फाइंड बेटर जॉब्स, है ना? ठीक है, अब ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन, जहां पे आपने डिफाइन कर दिया डिस्ट्रेस माइग्रेशन और क्या है, और इसी वजह से क्या हो रहा है, प्लीज राइट इन वन लाइन, कि एज पीपल माइग्रेट ज्योग्राफिकली, स्पेटियली, गांव से शहर, उनके साथ कुछ और भी जाता है। क्या माइग्रेट करता है उनके साथ? अनएम्प्लॉयमेंट माइग्रेट करता है। सीजनल प्लस डिस्गाइज्ड विल इक्वल टू साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, वल्नरेबल। हो गया इंट्रो, प्लीज कम टू द बॉडी ऑफ द टॉपिक। बॉडी में क्या लिखोगे आप? इसके कॉजेज लिखोगे, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी लिख सकते हो, मैकेनाइजेशन अनइवन बेनिफिट लिख सकते हो, दिस इज कंट्रीब्यूटिंग टू अर्बन पॉवर्टी, कैसे? प्रूव द पॉइंट, स्लम्स, ghettos, informal sector rise, GIG platform worker rise, give data, conclusion, in a line about social security code but there is a lack of implementation। और ये किसी भी सब्जेक्ट पे चलेगा, जेंडर पे लिखना है जेंडर पे लिख सकते हो, फॉर्मेट हमेशा सेम रहेगा। इंट्रो में हमेशा कीवर्ड को डिफाइन करके एक्सप्लेन करो, इलैबोरेट करो, इंट्रो में जो क्वेश्चन ने मेन डिमांड की है उसे एड्रेस करो। अब यहाँ पे एक चीज और भी आ जाती है, वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे, क्वेश्चन आपसे अलग अलग चीजें पूछता है। सम क्वेश्चंस विल आस्क यू इलैबोरेट, सम विल आस्क यू एल्यूसिडेट, कोई कहेगा आर्ग्यू, कोई कहेगा जस्टिफाई, कोई कहेगा वैलिडेट, कोई कहेगा डिस्कस, है ना, कोई कहेगा इलस्ट्रेट। अब इसमें क्या करना है? तो इसके लिए तो एक सेपरेट वेबिनार लगाना पड़ेगा ना, टुडे तो टाइम इज ओवर। ये भी समझना पड़ेगा ना अच्छे आंसर्स लिखने के लिए कि किसमें क्या लिखा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या डिफरेंस है बताओ बिटवीन एल्यूसिडेट एंड इलैबोरेट, सेम होता है क्या? बिटवीन डिस्कस और डिबेट, बिटवीन इलस्ट्रेट एंड सब्सटैंशिएट, बिटवीन क्रिटिकली एनालाइज एंड एनालाइज, क्या फर्क होता है? अच्छा बताओ, क्रिटिकली एग्जामिन में क्या आएगा, एग्जामिन में क्या आएगा? ये तो इंटरेस्टिंग है ना। तो इस पे एक अच्छा सा हम बनाते हैं वेबिनार, आई विल जस्ट स्पीक टू द बैक एंड टीम, इसको लेके आती हूँ इन द कमिंग फ्यू वीक्स, बहुत डिफरेंस है सब में। ठीक है, तो इसके लिए एक अच्छा सा वेबिनार लाते हैं एंड थ्रू टेबल्स एंड फ्लो चार्ट इसको भी क्लियर करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लवली वेबिनार। एज ऑलवेज मुझे तो बहुत मजा आया, आई थॉरोली एंजॉयड talking to my students. It was amazing as always. Next, I'll see you in the morning at 9:30 a.m. for optional at 4 p.m. Yes, for CSAT very soon in few days. Thank you so much everyone who attended the class. Separately, I can also try them to distinguish between purely English and purely bilingual. ऐसा भी हम कर सकते हैं। ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए वही चूज करिए जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता हो। सोशियोलॉजी करनी है तो मेरे पास आ जाए, ठीक है? चलो, गॉड ब्लेस यू।
All right, bye bye and take good care of yourself. All the best.